Okay, so before going to start trigonometry, I just want to give you the overview of the formula from this chapter. Okay, try to, if you remember all the formula, that's the plus point. Okay, but if you have not, please look carefully what I am sharing right now. Okay, okay. The chapter name is Introduction to Trigonometry. Introduction to trigonometry or trigonometry. Okay, this is the chapter we are going to talk about this. मैं एक बार बता दूं, जैसे कि हर चैप्टर में बताया था, ये जो क्वेश्चन सेलेक्टेड किया गया है, क्वेश्चन को समझ के देन सॉल्व करना, ऐसे रट्टा मारने का कोशिश मत करना. ऑल्सो बिफोर दैट यू हैव टू नो द फॉर्मूला. सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला के और. ओके, सो इन दिस फॉर्मूला, इफ ABC if ABC is a B and C. Okay, if ABC is a triangle, right angle triangle, जहाँ पे एंगल B कितना है 90 डिग्री, तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग दिस विल बी ABC, ABC, sorry, AB and C. So साइन थीटा के अकॉर्डिंग, साइन थीटा क्या कहलाता है? साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट या फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और ऑपोजिट, व्हाट एवर यू वांट टू से. ओके, बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस. ओके, spelling is mistake, forget it. Okay, focus here, that mean BC by AC. Okay, this one understood. Now sin theta equal to this, sorry, this is the angle theta A. Okay, जहाँ पे angle A equal to theta. Okay, and angle B equal to 90 degree. Okay, hope understood. Now sin theta equal to this, then cos theta equal to adjacent or base. Okay, by hypotenuse, hypotenuse. Okay, that's mean here it is AB by AC. Similarly, tan theta equal to opposite divided by adjacent. Okay, adjacent equal to BC by AB. Okay, then cot theta equal to opposite or perpendicular. Okay, perpendicular, whatever you want, and adjacent or base, perpendicular. Okay, so cot theta equal to 1 by 10. Then which one will be? AB by BC. Similarly, sec theta, that is opposite of what? 1 by cos theta, equal to AC by AB. Okay, then cosec theta, sorry, base by perpendicular. Okay, so cosec theta equal to 1 by sin theta, that's mean AC by BC. Okay, now relation between the ratios. Point number 2, relation
relation between the ratios. ओके, रिलेशन बिटवीन द रेशियो, वो क्या होता है भैया? ये जो tan थीटा है ना, कि सर ये जो tan थीटा है ये क्या कहलाता है? sin थीटा बाई cos थीटा। आप खुद से देख लेता, ठीक है, यहाँ से अपने को मिला है। एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। अंडरस्टूड? नंबर 3, trigonometry identities. Trigonometry identities. ओके, अंडरस्टूड? यहाँ के अकॉर्डिंग ये कहलाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। Similarly, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Okay, sometime you will be given like this. Okay, both are the same. Understood? Hope it will not bother you. Now come to the fourth point. Okay, now fourth point, complementary angles, those it's not needed, still I am mentioning because somehow आपका ब्रेन थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएगा। ओके, सो इट इज व्हाट 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स, वो क्या होता है भैया? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, फ्रॉम हियर you can say this: for theta plus phi equal to 90. Okay, forget about this. These things we don't need probably. Okay, so you can skip for this one. Now this is ये सीधा सा ये मतलब है इसका, ये जरूरत भी नहीं है। ठीक है, साइन थीटा अगर ऐसा होता है तो साइन थीटा साइन इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कहलाता है। ठीक है, दिस थिंग वी डोंट नीड प्रॉब्ली। ठीक है, अब जो रेशियो एंड द स्टैंडर्ड एंगल्स होता है, रेशियो नंबर 5, रेशियो एंड देयर स्टैंडर्ड एंगल्स, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले थीटा, देन साइन थीटा, then cos theta, okay, then tan theta, then sec theta, okay, then cosec theta, sec theta then cosec theta। okay, tan के बाद एक cot है। ठीक है, cot theta and sec theta, उसके बाद cosec theta। सो इससे क्या क्या जाता है, अगर इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ाने के टाइम में बताया था, अगर आपने फर्स्ट वन मेंशन कर लिया ना तो बाकी का चीज़ बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ओके से भैया? यहाँ पे देखो, सबसे पहले व्हाट वी कैन से दैट डिग्री 0 डिग्री 0 30 ओके 45 देन 60 and then 90। ओके, अंडरस्टूड? अब इसके अकॉर्डिंग जो साइन थीटा 0 का वैल्यू होता है वो ऑलवेज 0 होता है। उसके बाद जो हाफ 30 डिग्री का वो हाफ होता है, √2 होता है फॉर द 1/√2 होता है फॉर द 45 डिग्री, एंड द 60 डिग्री √3/2 एंड द 90 डिग्री इट इज 1। ओके, सो इसका अगर इसे जस्ट नीचे से ऊपर वाला लिख देना, ये क्या है, ऐसे आ रहा है, राइट?
ऐसे आ रहा है, इसको जस्ट ऊपर कर दो, तो ये जो भी आएगा वही इसका कॉस थीटा का वैल्यू होगा। सो इसके अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं 1 एंड √3/2, 1/√2, हाफ, एंड दिस इज 0। ओके, सो tan थीटा अभी अभी हम लोगों को पता चला कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहेगा तो tan 0 का वैल्यू आएगा 0, एंड tan 30 का वैल्यू आएगा 1/√3, एंड 45 का आएगा वो 1 आएगा, एंड जो 60 का आएगा वो √3 आएगा, एंड दिस इज अनडिफाइंड। ओके, नाउ द कॉर्ड वैल्यू, दिस इज अनडिफाइंड, ये 1/a आ जाता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग ये वाला √3 आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, एंड ये 0 आ जाएगा। कॉसेक सेक के लिए क्या होगा 1/cos, सो उसके लिए फर्स्ट वन आ जाएगा 1, सेकेंड वन आ जाएगा 1/cos मतलब 2/√3। ओके, सो ये वाला आ जाएगा √2, एंड जो 60 डिग्री आ जाएगा वो 2 हो जाएगा, बाकी ये चीज़ अनडिफाइंड आ जाएगा। कॉसेक के लिए क्या है भैया, अनडिफाइंड फर्स्ट कर दो, बिकॉज दिस इज 1/sin, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी द √2, दिस विल बी 2/√3, एंड दिस इज 1। होप ये चीज़ क्लियर हो चुका है। ओके, होप ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन का और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट फर्स्ट। Sin theta minus cos theta, you have to prove, okay, prove that sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 equal to 1 plus sin theta by cos theta. Okay, do it first. वैसे ये क्वेश्चन 23 में एंड 24 दोनों में आया था। Okay, if you're taking time, I'm solving the first one so that you can get the idea. काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे ना कि भैया प्रैक्टिस तो मैंने शुरू से नहीं किया है, ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्रशअप कर दो। सो ब्रशअप करने के लिए जैसे हम लोगों को पता है कि प्रूव दैट, अगर जब भी ऐसा आता है कि प्रूव दैट, तो हम अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, LHS एंड RHS, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं LHS से, LHS, ठीक है। LHS क्या है कि साइन थीटा ऐसा यहाँ पे लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, सो इफ यू नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता है तो उसी फॉर्मेट में लाएंगे तो एक टर्म हट जाएगा, ठीक है। So for that we are doing multiplying numerator, we are multiplying numerator and denominator with or by sin theta plus cos थीटा प्लस 1। सो वी विल गेट कुछ ऐसे फार्मूला आएंगे, कुछ ऐसे फॉर्मेट आएंगे, साइन थीटा
minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 into sin theta plus cos theta plus 1. Okay, now sin theta into sin theta plus cos theta plus 1. ओके, सो अगर ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ये मान लेना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए, जस्ट एज्यूम, ओके, दिस वन इज ए एंड दिस वन जो वन है वो बी, सो ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, दैट्स मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। सो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट्स मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। यहाँ से ये चीज़ आया है, प्लस क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 के साथ अब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ओके, दिस इज व्हाट वी गॉट। सो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा, ये गया साइन थीटा, 2 साइन थीटा आ रहा है 2, ओके, एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, राइट। सो यहाँ से अपन को बोल सकते हैं साइन थीटा एक्चुअली, सो कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, से कॉस थीटा गया, ठीक है, कॉस थीटा गया। सो यहाँ से सब कुछ हटाने के बाद हमें मिल जाएगा कुछ ऐसे, कैसे मिलेगा कि इससे ऊपर से आ जाएगा अपने को साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी प्लस नॉट, दिस इज माइनस, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2 साइन थीटा, 1 साइन थीटा एंड 1 थीटा, 2 साइन थीटा, ओके, 2 साइन थीटा, and then plus 1, okay, got it right। now नीचे वाला पार्ट के लिए क्या करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1। सो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, देन बाय 2 साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन ही नहीं किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए बी, ठीक है। सो यहाँ से प्लस 1 एंड माइनस 1, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। सो नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। सो ऊपर से क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले के लिए 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस वन, ओके। सो बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले दो, यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले दो, कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस सॉरी साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 ओके बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ओके, गॉट इट, समझ में आ रहा है। ये चीज यहां तक ऐसे ही रख देते, ठीक है। अब ये चीज आगे नहीं जा सकता, अब अगर ये चीज आगे नहीं जा सकता तो क्या करना है गाइस, शायद थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक क्या है भैया कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ओके प्लस 2 साइन थीटा, ओके प्लस 1 दैट इज ओके। एंड यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस, ओके फॉर दैट 1 प्लस किसी को मिस्टेक कहीं पे दिख रहा है, एक मिस्टेक हुआ है। बताओ कौन सा मिस्टेक है, बताओ भाई। यहाँ पे अंधे जैसे ही मैं कॉपी मतलब कर रहा हूँ वैसे ही कॉपी हो रहा है। किसी को समझ में आया, आया कि नहीं, इसे मिस्टेक तो बोल नहीं सकते, थोड़ा ओके। यहाँ पे एक चीज दो, दिस आई कैन हिंट्स यू द लाइन बट यू हैव टू टेल मी व्हिच वन इज द मिस्टेक। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे जो स्टेप जंप किया है, स्टेप जंप कौन सा किया है कि जो यहाँ पे मैंने वैल्यू इनपुट किया है, राइट, मैंने वैल्यू इनपुट किया है कि साइंस का थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस का थीटा। हाउ डू वी गॉट दिस, बिकॉज वी नो दैट साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1। सो यहाँ पे जैसे मैं ये चीज पुट करूंगा 1 माइनस कॉस का थीटा, ओके माइनस कॉस का थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, अंडरस्टूड। देन यू हैव टू मेंशन साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1, 2 sin theta cos theta, okay, 2 sin theta and cos theta, understood। Now everything is good, right, everything is good. We have taken 2 minus 2 cos theta plus 2 sin theta, but we have done one mistake, and that is instead of 1 plus 1 it is 2, right, we have mentioned it to 1, okay। so यहाँ से अपने को ये चीज जब तक you are just copying or you are able to understood everything। किसी ने सवाल तो नहीं किया, अगर समझ में आ रहा है तो किसी ने सवाल नहीं किया कि भैया यहाँ पे क्या कुछ हुआ है या फिर सर यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, समझ में नहीं आया। सो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 1 माइनस कॉस का थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा इंटू cos theta, okay। So 1 minus cos का theta, what we will got, 1 minus cos का theta means, tell me, 1 minus cos का theta equal to what, come on anyone, chat box is open। 1 minus cos का theta equal to what, साइंस का थीटा। ये चीज बोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, राइट, बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। सो यहाँ से ये बोल सकते हैं 2 2 हटा देते हैं, सो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं अगेन, साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। साइन थीटा हटा देते हैं,
इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। व्हाट वाज द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में क्या था? दिस वन। क्या ये चीज मिला है? इक्वल टू द राइट RHS, understood? Equal to RHS. Hence it is proved. It's proved. Okay, understood? Don't do like this. Okay, एटलीस्ट किसी का भी ये तो समझ में नहीं आया सर यहाँ पे मिस्टेक था। ओके, ये चीज समझ में नहीं आ रहा। You guys are not toys, right? कि जैसे इधर घुमाओ तो इधर हो जाता है, उधर घुमाओ तो उधर। अच्छा, किसी ने मेला गया हो, मेला बोलते हैं ना, फेयर, मेले में हर कोई अटेंड किया। लास्ट मेला कौन अटेंड किया है? एनीवन? सो मेले में एक वो पुतले होते हैं, राइट? इधर उधर घूमता है ऐसे। यू गाइस आर लाइक द सेम। किसी ने एक भी मतलब मिस्टेक हो रहा है या फिर गलती हो रहा है, जस्ट जैसे ही बोलो, अंधों ने मतलब वो अंधे का क्या होता है, आंख बंद होता है, ठीक है? सो उसे जो भी बोलो उसे वही समझ में आता है, उससे कुछ दिखता नहीं है। यू गाइस आर लाइक द सेम। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। आई सॉल्व दिस वन बट आई एम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसे ए एक्सेप्ट किया जाएगा कि यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड क्वेश्चन ये है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, फाइंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू व्हाट? डू इट फास्ट। थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना। आपको पता होगा, राइट? एज ए ह्यूमन वी ओनली एबल टू यूज 5 to 10% ब्रेन। वी आर नॉट एबल टू यूज द 100%। 100% तो छोड़, 10% से ज़्यादा यूज ही नहीं होता। वी कांट। If you can use the more than 10%, then you are an alien. Do it fast. Don't waste your time. We have so many questions to solve. ये जितने भी जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो कि लगातार 3-4 साल में आया है CBSE के बोर्ड में। ऐसा कुछ क्वेश्चन है उससे ज़्यादा बार आया है, एटलीस्ट 2 बार आया है या फिर 1 बार आया है होगा, जितना भी जो क्वेश्चन है। तो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ग्रेट, आई गॉट द आंसर। सो हाउ टू सॉल्व इट, राइट? हाउ टू सॉल्व इट? फर्स्ट, this is the value we have given. So whatever value is given, sin theta plus cos theta equal to √2, just square the both the side. So square the both side, then you will get sin square theta plus, so you will get sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta equal to 2, बिकॉज √2 का स्क्वायर अगर अपन करें तो वो ये निकल के आता है, √2 का स्क्वायर क्या निकल के आता है? √2 का स्क्वायर आता है 2। ओके, नाउ यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। दैट्स मीन 2 साइन थीटा
cos theta equal to 2 minus 1 equal to 1, and 2 sin theta and cos theta equal to sin 2 theta. Okay, this is what we got. Now come to the value which we have to find. Tan theta plus cot theta. Cot, not cos, cot theta. So we can write it in this way कि sin theta by cos theta equal to sin theta by cos theta plus cos theta by sin theta equal to cos theta into sin theta by sin square theta plus cos square theta. Okay, this value is 1 by 2 sin theta into cos theta. Okay, that is sorry, this is sin theta by cos theta. So we are multiplying 2 with the both numerator and denominator. 2 sin theta cos theta sin theta into cos theta. So 2 sin theta into cos theta equal to, we know 2 sin theta equal to cos theta equal to sin 2 theta. अभी अपने को मिला है sin theta 2 theta का वैल्यू 1 है. So 2 by 1 equal to 2. Understood? So tan theta plus cot theta का वैल्यू है 2. Hope everyone understood. But I am not getting. Simply इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है. Simply squaring the both side. Okay, squaring the both side. Okay. Now अगर स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, बिकॉज रूट 2 का जो स्क्वायर करें तो वो 2 आता है. एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिस टर्म. सो यहाँ से अपने को 1 मिला है, राइट? मिला है कि नहीं? बट यहाँ पे उसके बाद जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसा है वैसे लिख दिया मैंने. 1 को राइट साइड में ले लिया तो 1 माइनस हो गया. एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, वी नो दैट, राइट? सो यहाँ से साइन 2 थीटा का वैल्यू मिल चुका है. एंड टैन थीटा एंड कॉट थीटा को मैंने सिंपली साइन थीटा बाई कॉस थीटा पे मैंने डिवाइड कर दिया. This is the formula. Okay. अब tan थीटा एंड cot थीटा का सिंपली sin थीटा बाय cos थीटा में डिवाइड किया एंड उसके बाद सिंप्लीफाई किया है. अगेन 99.99% जो बच्चे का जो भी जिसे बोल रहा है ना कि इंट्रो जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा टफ है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ. हर एक बच्चे का फार्मूला क्लियर नहीं है, इसीलिए ये टफ लगता है. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, इसीलिए मैं जब भी ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मेरा मकसद ये है कि पता है सबको किसको मतलब आई मीन ईच एंड एवरी वन हैज़ दैट कैपेबिलिटीज कि वो लोग सॉल्व कर पाए. द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द फार्मूला. Okay, and the reason for this is you are not doing enough practice. That's all. Now do this. Evaluate tan 30 degree by cot 60 degree plus sin 45 degree into cos 45 degree plus sin 90 degree by cos 0 degree. Do it first. Tan 30 degree by cot 60 degree plus sin 45 degree into cos 45 degree plus sin 90 degree by cos 0 degree. Do it first. जब सिर्फ
इनपुट पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। इफ यू डू द सैंपल पेपर, राइट, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन का उठा लो, एमसीक्यू में अगर 10 सैंपल पेपर किया तो एटलीस्ट मोर देन 8 सैंपल पेपर में इसे ए क्वेश्चन एज ए एमसीक्यू मिलेगा। एमसीक्यू में आने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। डू इट फास्ट। कॉस 0 डिग्री, डिनोमीटर कॉस 0 डिग्री। अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, जब मैं बोल रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। या ओके, गॉट वन आंसर, वेरी गुड, एटलीस्ट गिविंग द आंसर, राइट, द ओनली वन। ओके, वेरी गुड। सही गलत तो बाद में डिसाइड होगा, एटलीस्ट आंसर तो दिया जाए, आंसर तो दिया जाए। ओके, सो यहाँ से वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज, जैसे कि अपने को पता है tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 एंड cot 60 डिग्री का वैल्यू सेम, राइट, 1/√3 प्लस sin 45 डिग्री का वैल्यू है जितना, cos 45 डिग्री का वैल्यू है उतना, प्लस sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, sin 90 का वैल्यू है 1। सिमिलरली cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, ऑपोजिट कर देता है, वही 1 आ जाता है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को टोटल अगर वैल्यू इधर उधर कट छट करे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/1। ओके, जो कि आ जाता है 1 प्लस 1.5/1, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 2.5। ओके, होप एवरीवन सबका सेम आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये है, किसी का 2.5 या फिर 5/2 जो भी आया है, बोथ ऑफ द सेम आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी टाइम जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था ये चीज़ बता दिया था, जो आपका जो फॉर्मूला है वो एज ए प्रूफ आपको दिया जा सकता है। प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डू इट फास्ट। या डू इट फर्स्ट। You can do left hand side equal to right hand side। 24 में बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन, आया भी होगा। ओके, आई थिंक यू हैव सॉल्व। ओके, इसमें
मतलब ऐसे क्वेश्चन आंख बन के सॉल्व किया जा सकता है। हाँ सर, आप तो बोलोगे ही, आप जो टीचर ठहरे। मैं जब स्टूडेंट था तब भी करता था ब्रो। चलो चलो, एक आया है, एक आया है, देन वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन। So 6 का theta equal to what? We know that LHS. Okay, LHS. 6 का theta equal to, we know that 1 by cos का theta, 1 by cos का theta, and tan का theta we can write sin का theta by cos का theta equal to cos का theta equal to is the denominator, so 1 minus sin का theta. As we know that 1 minus sin का theta equal to cos का theta by cos का theta, cos का theta by cos का theta equal to 1, equal to RHS, equal to RHS, equal to RHS. Hence it is proved. It's proved. Okay. Understood? Understood? समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 5 के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है? इफ जो tan थीटा का वैल्यू वो दिया गया है 3/4। ओके, 3/4। tan का वैल्यू है 3/4, देन फाइंड द sin थीटा एंड cos थीटा एक्यूरेट एंगल। ओके, sin theta and cos theta, find the value of, find sin theta and cos theta. Okay, sin theta and cos theta, do it first. कुछ नहीं है इसमें, तो मुझे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। स्टिल ये चीज़ हर किसी से सॉल्व हो जाना चाहिए यूं चुटकी में। ओके, सो tan थीटा इक्वल टू व्हाट वी नो, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, सो यहाँ से tan थीटा क्या दिया गया है 3/4। सो यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस क्या होता है? रूट अंडर 3² प्लस 4² इक्वल टू 5। हाइपोटेनियस कितना मिल गया है? h इक्वल टू 5। नाउ पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। सो द साइन, yes, you should not do this directly, you can use k. Okay, okay, that will be better, that is the good approach. Okay, you should not apply right directly. Now sin theta equal to, I have already given this instruction when I was teaching. Okay, so यहाँ से sin theta क्या लिखेंगे? sin theta equal to पता क्या पता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कम ऑन यार, तुरंत आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख सकता है 3/5 cos theta equal to 4/5। Okay, understood? Going for the question number 6. Question number 6. Find sin 60 degree, sin 60 degree into cos 30 degree minus cos 60 degree into sin 30 degree. Do it fast. Okay, do it fast. ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th का कुछ, किसने क्लास 9 कितने अच्छे से पढ़ा है ना, उसे यहाँ पे पता चलेगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्लास 9 में किसने कितना सही से बताया था।
समझाया था चैप्टर को, तो वो यहाँ पे सही से कर पाएगा ट्रिग्नोमेट्री। सेम बट डिफरेंट। Do it. I can give you a hint. You can apply. You can apply that sine a into cos b equal minus cos a into sine b equal to sine of a minus b. और you can direct put the value. ये चीज़ थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, यू कैन स्किप दैट वन। ओके, ये थोड़ा हाई हो जाएगा, पुट द वैल्यू डायरेक्ट। ओके, एवरीवन इज गेटिंग 1/2। ओके, ये अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा यार, 1/2। ओके, होपफुली। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया? प्रूव दैट 1 प्लस tan square theta by 1 plus cot square theta equal to tan square theta. Do it first. Okay. क्या टफ लग रहा है क्या बहुत ज़्यादा? चलो, ये रिस्पॉन्स होना चाहिए। Okay. Got it. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हो जाए बताओ? यू विल चूज और आई हैव टू चूज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर किसी ने सही से पढ़ा? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ऑलरेडी, ओके लेट्स सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं अपन, ठीक है। वेटेज के हिसाब में आप काम करेंगे, वेटेज जिसका जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा। 16 एंड क्वाड्रेटिक में चलो कोई किसी का क्वाड्रेटिक बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, देख के अच्छा लगा। वही वाला रिस्पॉन्स एक बार एग्ज़ाम में दिखा दो यार, फिर तो फोड़ेंगे। Okay, we are going for the solution. LHS. Okay. LHS में क्या बताया गया है? So LHS का इक्वल टू, we know that 1 plus tan square theta equal to sec square theta. Come on यार, sec square theta by 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, right? cosec square theta, ठीक है। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसे डायरेक्टली अपन tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय कर सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, हेंस इट इज प्रूव इक्वल टू हेंस इट इज प्रूव, hence it is proved. Okay, हाँ इतना ही आसान है ये। Got it? Whatever you want to, कोई साइन एंड कॉस। ओके, ये जो चीज़ मैंने किया ना, ये शायद आप लोगों से अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा। सो मेरे को वो फार्मूला आता है या फिर उतना ज़्यादा ये वाला, जैसे मान लो 1 बाय कॉस का थीटा, साइंस का थीटा ऊपर जाएगा, यू हैव टू शो इट। ओके, यू हैव टू सॉल्व इट। इसके बाद इसे साइंस का थीटा बाय कॉस का थीटा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिखना पड़ेगा 1 बाय कॉस का थीटा इंटू साइंस का थीटा बाय कॉस का थीटा बाय 1, देन यू विल गेट द साइंस का थीटा बाय कॉस का थीटा, सो दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्टेप जंप मत करना, मतलब मैं आंसर लाने के लिए यहाँ पे कर दिया ताकि आपको समझ में आया, इसी तरह हो जाएगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बताया जा रहा है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, verify
वेरीफाई साइन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, बट यू हैव टू प्रूव दैट। ओके, ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा आगे जाके भी सीखोगे, ठीक है। नो, साइन थीटा इट इज ओके, साइन थीटा माइनस थ्री साइन। इफ थीटा इक्वल टू if theta equal to 30 degree, then verify sin theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. By the way, this is formula, okay, you will learn in class 11 and 12. Okay, 4 sin cube theta. You can just put the value of the theta, ठीक है, थीटा का वैल्यू अप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। कुछ नहीं है इसमें। अगर थ्री थीटा है तो थीटा इंटू थ्री, वैल्यू इंटू थ्री, सॉरी थीटा इंटू थ्री, देन पुट द वैल्यू। ओके, वैल्यू के साथ थ्री मल्टीप्लाई मत करना। Do it fast, guys. You have to solve so many questions. We only have solved about half of the question. At least I don't know why you are getting. Okay. Still I'm not getting any answer. आंसर क्या करना है? यू हैव टू वेरीफाई इट, राइट? एटलीस्ट हो गया तो ये बताओ। सो वेरीफाई कैसे करना है? लेट्स LHS, ओके, टेक द LHS, ओके। LHS में क्या बताया गया है? साइन थीटा, राइट? साइन थ्री थीटा, थ्री थीटा मतलब थीटा का वैल्यू क्या था? साइन इंटू थ्री इंटू 30, यानी साइन 90 डिग्री। उसका वैल्यू क्या है? साइन 90 डिग्री 1, ओके, राइट। अब क्या बताया? थ्री साइन थीटा माइनस, अब RHS में आ जाता है, ओके, थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट? यहाँ से आ जाता है 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री, ओके। सो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू हाफ का क्यूब। सो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, ओके, दैट यू विल गेट 3/2 माइनस 4/8, ओके, दैट मीन 1/2। ऐसे काट नहीं सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हो 3/2 माइनस हाफ, ठीक है। सो यहाँ से लिख सकता है 2 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/2 equal to 1. So LHS equal to RHS, hence it is proved. LHS equal to 1. कौन बोल रहा है कि LHS equal to 1? 3 into 30, then you have to put the value, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे करेंगे, मैंने वही चीज़ बताया था, ठीक है। दिस इज द LHS, ओके, साइन 30, राइट? तो साइन 30 3 इंटू द 30 तो 90 डिग्री एक्चुअली इट इज कमिंग। सो 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 है, ओके। डू दिस केयरफुल्ली। मैंने थ्री थीटा मतलब
3 into theta. Okay, so first sin 3 थीटा दिया गया है, लुक केयरफुली। ऐसे ही यही बच्चे बोलते हैं कि भैया सर बहुत सब कुछ फोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आउट होता है, मिलता है कितना है, करते हैं 100 आउट ऑफ 100, मिलता है इनको है 90। यही होता है। केयरफुली सॉल्व किया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए राइट एंगल राइट ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल ऑपोजिट या फिर परपेंडिकुलर, ऑपोजिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड जो एडजसेंट है यानी बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ओके। देन फाइंड all the triangle ratio, find all triangle ratio, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं करने वाला, सो अपोजिट दे दिया गया है, एडजसेंट दे दिया गया है, बस आपको हाइपोटेनियस निकालना है। h will be रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर, ओके। पुट द वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा निकाल देना है, कॉस थीटा निकाल देना है, ओके, टैन थीटा निकाल देना है, उसके बाद कॉट थीटा निकाल देना है, उसके बाद सेक कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, ठीक है। यू विल गेट द आंसर। इतना ही इजी है, ठीक है। ये चीज़ प्रूव कर लो। प्रूव दैट, प्रूव क्या है, प्रूव cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कैसे प्रूव करना है, यूजिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। डू इट फास्ट। एवरीवन अंडरस्टूड, सबका फेस ट्रिग्नोमेट्री कितना मतलब टफ लग रहा है क्या, अगर मैं आस्किंग, ओके, आई गॉट इट, वन हैंस प्रूव्ड, ओके, ग्रेट मैन। थोड़ा फास्ट लाओ, थोड़ा जोश से काम करो। सो वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन क्या कहता है, प्रूव दैट, राइट। सो इन ट्राइंगल ABC, राइट, ABC, जहाँ पे एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने शुरुआत में जो ट्राइंगल ले लिया था, या फिर आप भी ले सकते हो अगेन, ठीक है, ABC ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी, ओके। सो वहाँ से एंगल A इक्वल टू थीटा, ओके, A इक्वल टू थीटा, वैसे इसका ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, A इक्वल टू थीटा। सो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी राइट एंगल है, मतलब टोटल जो 3 एंगल्स है, 3 एंगल का कितना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू द 180, राइट। एक तो जो B ये तो 90 डिग्री बता ही दिया है, तो जो C एंड A ये टोटल में 90 डिग्री है, सॉरी टोटल में 90 डिग्री है, मतलब क्या, जो दूसरा वाला होगा वो 90 डिग्री माइनस दैट वन होगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं जो C है, एंगल C ऑपोजिट इक्वल टू AB, एंड जो एडजसेंट है, एडजसेंट और बेस, ओके,
और बेस और ऑपोजिट और परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी एंड हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ए बी सी। ओके, ए बी सी। सॉरी, मैंने कुछ किया क्या? हाँ, दिस इज वन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ए बी एंड सी। ओके, अगर ए है एंगल बी 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है, बी सी एडजेसेंट, तो यहाँ से बोल सकते हैं हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। ये कितना होगा? ए सी होगा। यहाँ से लिख सकते हैं 10 cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos सी इक्वल टू बी सी बाय ए सी इक्वल टू साइन थीटा। राइट, राइट, समझ में आया? हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। समझ में आया? अरे एटलीस्ट येस और नो कुछ तो बोलो। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर, सीधा सा सिंपल बात है, जो भी अपन जब मैंने पढ़ा था, जब भी राइट एंगल है, ठीक है, ए बी सी डी एक राइट एंगल। क्वेश्चन क्या दिया गया था कि प्रूव दैट cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री यूजिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या करना है? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या? यहाँ पे ए बी सी मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल ले लिया है, ए बी सी एक ट्राइंगल ले लिया है। यहाँ पे जो एंगल बी है वो 90 डिग्री, सो एंगल ए है वो थीटा, दिस इज थीटा। ओके, दिस इज थीटा। सो अगर ये थीटा है तो सी क्या होगा? बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, बी एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ए एंगल बी टोटल में 90 डिग्री है। सो एंगल ए ऑलरेडी थीटा दिया गया, तो एंगल सी विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। सो एंगल सी इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ जहाँ पे एंगल सी में ऑपोजिट ऑफ, या ऑपोजिट जहाँ पे क्या है ए बी ऑपोजिट, या फिर इसे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर ए बी है, एडजेसेंट या फिर बी सी, एडजेसेंट या फिर बेस, इसे बी सी बोल सकते हैं। एंड जो हाइपोटेनियस है वो ए सी है, दिस वन बी सी, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ से ये कह सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू cos सी, है कि नहीं? cos सी इक्वल टू हम बोल सकते हैं बी सी बाई ए सी, दैट इज 90 साइन थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा ये मेंशन कर देना, ये मेंशन कर देना, सिंस साइन थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी फॉर एंगल ए। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इवैल्यूएट, इसका आंसर जल्दी से जल्दी आना चाहिए, कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट पुट द वैल्यू एंड डू द कैलकुलेशन। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, गिव मी द आंसर क्विकली। Do it fast. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, जल्दी ख़त्म करूँगा, और 3-4 क्वेश्चन है उसके बाद ही ख़त्म करेंगे। ओके, डू इट फास्ट। जैसे कि मैंने बताया, हर एक क्वेश्चन आंसर साथ में रहना चाहिए एक सेपरेट बुक में। ठीक है, ऐसे ऊपर लिख देना शुरुआत में, टारगेट मिड टर्म, द मोस्ट
demanding question for the midterm 2025. Okay, I got one answer 5/4. Okay, is it? Let's see. Let's see. ठीक है, ठीक है. I don't think it is correct answer. You can check another time. Okay, until I am going for the solution. ओके, लेट्स सी. दो आंसर मिला है अपने को, इसे थोड़ा इवेलुएट कर लेता है. सो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1. सो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या है? कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? जो कि 2 है. सो 2 का वैल्यू होगा इतना. सो यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं 2 + 3 × 3/4 -4. यहाँ से ये लिख सकते हैं 2 + 9/4 -4. यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं 4 8 9 - 16 = 1/4 और 0.5. जिसका भी 1/4 या फिर 0.5 आया है, ये उसका आंसर सही है. गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया जा रहा है? इफ sec थीटा माइनस tan थीटा = 1/3, देन फाइंड द sec थीटा प्लस tan थीटा. अरे यार, अभी ऐसा किया ना अभी? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, डू इट फास्ट. वैसे मैं बता दूँ, इफ़ यू नो द फार्मूला, द बेसिक फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, a² - b² का फार्मूला, यू विल गेट द आंसर. यू नो पलक झपकते ही आंसर मिल जाएगा. हिंट्स दे देता हूँ. a² - b². ओके, आई कैन सी दैट. अब तो आंसर आ रहा है, लगभग सबका आंसर आ रहा है. ठीक है, ये चीज़ तो देखना था कि सारे को सारा कोई आंसर दे रहा है. चलो, ऑल आंसर आ चुका है. वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन. 5/3, राइट. लेट्स सी. एज वी नो दैट a² - b² का क्या फार्मूला है? a - b × a + b, राइट. सो हमें क्या पता है? sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1. वी नो दैट क्या कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1. सो इसे a - b, a² - b² का होल स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला लिख सकते हैं. सो वहाँ से लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा = 1. यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है, sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया गया है और फाइंड आउट करने बोला है sec थीटा प्लस tan थीटा. सो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1/3 = 1. सो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा = 3. जिसका भी sec थीटा प्लस tan थीटा = 3 आया है, दैट इज द आंसर. गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया गया है कि फाइंड थीटा इफ साइन थीटा = कॉस थीटा. ठीक है, मुझे अब भी याद है ये वाला क्वेश्चन. हम सब ने जब चैप्टर पढ़ाया गया था, हम सब ने ये वाला का आंसर किया था. ठीक है, चलो, किसी ने ऑलरेडी आंसर भी दे दिया 45. हाउ कैन. ठीक है, देखते हैं 45 होता है कि नहीं थीटा का वैल्यू.
ऐसे स्पीड होना चाहिए, कुछ भी हो यार, इम्प्रेस तो हूँ मैं। सो यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। यहाँ से लिख सकते हैं, सो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1। सो टेन थीटा इक्वल टू 10 45 डिग्री, किंतु क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, सो या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जिसका भी आंसर 45 है। यू आर द राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, cos theta, prove that, okay, prove that cos theta by 1 minus sin theta equal to sec theta plus tan theta. Do it fast. इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें सब, ये आसान नहीं होगी, ठीक है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट ऑल्सो, बट इट इज सजेस्टेबल कि अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे देन यू विल गेट द आंसर क्विकली। किसी ने ऑलरेडी बता दिया हैंस प्रूव्ड। भाई साहब चलो यार, गजब है। ऐसे जज्बात होना चाहिए, ऐसे स्पीड, स्पीड की आप देखते ही रह जाओ, दुनिया देखता रह जाए, ठीक है। द वर्ल्ड विल सी यू। ऐसे स्पीड होना चाहिए। आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। इसे साइन बाय कॉस पे डिवाइड कर लेंगे। सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो यहाँ से ये चीज़ बोल सकता है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, राइट। राइट है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आया। अब एल एच एस को देख लेते हैं। एल एच एस, ओके, काम करते हैं। अच्छा एल एच एस, जबकि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। चलो एल एच एस इक्वल टू क्या है कि कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसे भी साइन कॉस में डिवाइड कर लेते हैं। इसे नहीं, इसे डिवाइड नहीं करेंगे, इसे करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा के साथ डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों को ही 1 प्लस साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस साइन थीटा, ऊपर और नीचे दोनों को 1 प्लस साइन थीटा के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो यहाँ से अपने को मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। और नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से अपने को ये मिल जाएगा, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे से ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। इक्वल टू कॉस कॉस गया, सो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। सो आर एच एस इक्वल टू, इट शुड बी लाइक दिस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, समझ में आया, समझ में आया। लास्ट बट द नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया जा रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी है 90 डिग्री यानी राइट एंगल, ये भी है 24, ठीक है, सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। रिमेंबर गाइस, जहाँ पे आपको यूनिट दिया जा रहा है सेंटीमीटर या फिर मीटर, आपको आंसर भी वैसे ही देना है, ठीक है, ठीक है। देन फाइंड साइन ए
cos A and tan C. Do it fast. ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसी को करके अपन खत्म करेंगे. सो फटाफट आंसर दे दो. नेक्स्ट डे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन गाइस, डू इट फास्ट. जो भी बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं ना, देखना एक बार एग्जाम देके आओ, फिर फर्क समझ लेना कि ये सारा का सारा क्वेश्चन कितना ज़्यादा जरूरी था. फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है ना कि मतलब ऐसे ही वेस्ट करेंगे. अच्छा, एक आंसर मिला है 7/20. ओके, सिर्फ एक आंसर मिला है मुझे एटलीस्ट, बाकी ये 2-3 तो आंसर मिले. ओके, लेट्स सी. वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन और आई हैव टू वेट. चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर, जबकि ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं. और भी एक आंसर आया है, एटलीस्ट सबसे आंसर डिजर्व करते हैं ये वाला. चलो सबसे आंसर डिजर्व करेंगे, देन अपन जाएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे. और ओके, एटलीस्ट मेजोरिटी. ओके, कम ऑन गाइस, डू इट फास्ट. लास्ट वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट सबको आंसर देना चाहिए. अगेन मैं बोल रहा हूँ, हर किसी को सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं है. हर किसी को सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं है कि एक बार हो गया इधर तो हो गया. यू शुड एटलीस्ट लुक और एटलीस्ट प्रैक्टिस once, twice or thrice. I'm waiting for the answer in the chat box. Everyone. ठीक है, आई डोंट थिंक ये लोग अब देने नहीं वाले हैं. ठीक है, कसम खा लिया है शायद ये लोग आज आंसर नहीं देंगे कि सर आप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, बहुत नींद आ रहा है. ओके, वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन. लुक एट द बोर्ड केयरफुली. सो हाइपोटेनियस, यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी और ए सी. यहाँ पे हाइपोटेनियस या OC 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49
जो कि 25 को होल स्क्वायर आता है 25 सेंटीमीटर। सो एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए, ठीक है, दिस इज फॉर एंगल ए, ठीक है, और एंगल ए के लिए साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी, ठीक है, इक्वल टू 7/25, ओके। एंड जो कॉस ए है वो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, जो कि 24/25 है। अंडरस्टूड। फॉर एंगल सी, सी के लिए क्या होगा, सी इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस ए, जो कि tan सी ओ हो जाएगा ऑपोजिट टू सी, ऑपोजिट टू सी एंड एडजेसेंट टू सी, एडजेसेंट टू सी, जो कि ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई बी सी इक्वल टू 24/7, ओके। जिसका भी ये आंसर आया है, यू गॉट द राइट आंसर, ओके। समझ में आया, समझ में आया, होपफुली सबको समझ में आया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप सबका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, राइट। इस चैप्टर में यही जितना भी जो क्वेश्चन है ना रिलेटेड टू दिस 15 टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर आएगा। आई कैन गिव यू दैट मच क्लैरिटी, ओके। ये सारा का सारा 15 क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया, एक बार आपने कर लिया है, हो सकता है किसी को फर्स्ट टाइम समझ में आ जाए, किसी को सेकंड, या फिर किसी को थर्ड टाइम, लेकिन जब तक ना समझ में आए तब तक प्रैक्टिस करते रहना, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं दूसरे क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, ओके, सी या, हैव ए गुड डे।